मैं दरखास्त करूंगी मोहम्मद इसाक अली साहब से कि आए और कुरान पाक की सिजन आयत तिलावत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। CC एग्रीगेटेड, वो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और करंटली वो जनरल सेक्रेटरी है कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग लॉयर्स एसोसिएशन CDLA के। मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि वो आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर जस्टिस जाफर रजा साहब, ऑनरेबल गेस्ट judges and participants, assalamu alaikum. Today we gathered to discuss a vital topic, implementing alternate dispute resolution in institution. As we navigate a complex world, efficient dispute resolution is key to progress. Mediation, a core part of alternate dispute resolution, offer numerous benefits. Cost effectiveness, as mediation reduce legal cost and time spent on disputes. Confidentiality, as proceedings are private, protecting reputations and sensitive information. And it is also speed, as dispute resolve faster than litigation, often in days or weeks. And also relationship preservation, as mediation foster dialogues, maintaining relationship and promoting harmony. Mutual agreement solution, as parties control the outcome, ensuring satisfaction and compliance. Flexibility, as mediation all allow for creative solution tailored to specific needs. Pakistan has recognized ADR's importance, enactment laws to support its implementation, provide a framework for alternate dispute resolution mechanism, including mediation and arbitration. Section 89A of the Code of Civil Procedure empower courts to refer dispute to mediation. And Section 10A of the CPC allows parties to seek alternate dispute resolution. Mediation Practice Direction 2023 regulates mediation procedure in courts. Consider the numbers of litigation in Pakistan. Pakistan faces a backlog of 2.36 million
cases, out of which 33,698 in the Supreme Court, 3,48,983 in the High Courts of all province and Islamabad High Court including, and 1.93 million in district courts of all over the Pakistan. Mediation can alleviate this burden, allowing justice to reach people faster. जी जी बोले In this regard, I will also refer the कौन इकरा पे Holy Quran emphasizes reconciliation. The verse is that, and if you fear a breach between them, appoint an elder from his family and elder from her family. If they desire reconciliation, Allah will make them agree. Surah An-Nisa, नहीं आप ayat number 4. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also said, reconciliator is better than all prayers and fasting and charity. वो LCD का है वहाँ से ना I also recall a personal experience, a long-standing family dispute between my father and uncle on mediation's power. Let's explore its applications, commercial disputes with preserving partnerships, family matters, rebuilding bridge, labor issues, restoring harmony, land disputes, resolving boundary issues. Globally, countries like the US and UK and Singapore use mediation effectively. Pakistan's Supreme Court promotes area and judicial reform action plan aimed to digitize courts. To implement an alternate dispute resolution effectively, we need training for mediators and lawyers, and awareness campaigning for the public, and institutional support for mediation centers, collaboration between courts and ADR institutions. Let's address challenges that the lack of awareness about alternate dispute resolution, resistance to change from traditional litigation, and need for skilled mediators. And further, for opportunities, reducing case backlog, enhancing access to justice, and promoting economic growth through efficient dispute resolution. Mediation is not just a process, it's a pathway to stronger institution and trust in justice. और ऊपर कर Let's embrace it to move Pakistan forward. Thank you. ऊपर जगह है नहीं जूम नहीं कर रहा है Voluntary participation of parties which focus on collaborating, exchanging information without prejudice to legal system. It is a commonly used institution environment to manage internal external conflict, whereby mediator, arbitrator is unbiased and parties control the outcome with confidentiality without going into time-consuming litigation. And if we say that institutions used for ADR usually applied in universities, government, corporation, institution, health, and international bodies, addresses the employees issues, administrative issues, contractual issues, and policy-related matters. For implementing that ADR system into the institution, integration into institution policies and governance systems required. Key component of an institution of ADR framework is formally clearly define the policy and procedure which enhance institution credibility and reputation between the parties, strengthen internal conflict management system, and encourage culture of dialogue and inclusion. Trained and neutral facilitator or mediator to be appointed to resolve ADR institutional matters, confidentiality and procedural fairness to be maintained all the time. Accessibility for all stakeholders
order for prompt resolution of dispute is required. Monitoring and accountability mechanism to promote transparency also needed to resolve the dispute among the parties, which is taken care of by the banks and or financial institutions. Sorry. Commonly, ADR mechanism drive into four parts. One is the negotiation, and which is informal direct discussion between parties. And the second one is the mediation tool, which is used commonly right now. Neutral third party facilitated dialogue and parties craft mutual agreements. The third one is arbitration. Neutral decision maker issue binding or non-binding decision after hearing evidences. And the fourth one is conciliation. Focus on repairing the harm and restoring relationship, which is बंदे से बात कर रहा था जिसका if you say that where the mediation comes usually once the negotiation is happened and the issue might not be resolved, people usually go directly to litigation side, which is again that is time consuming and very lengthy process. Hereby the mediation role is in midway between the negotiation and the litigation. It is also bridging the gap between parties amicably without going into costly litigation, as well as the time consuming, which is not feasible for parties to enhance their and maintain their relationships. ADR process in institution usually evolved into identification of dispute and conflict. Selection of appropriate ADR method was used to facilitate and train neutral mediator or appointment of arbitrator. Agreement or decision needs to monitor through implementation and follow-up. What are the benefits for ADR institution? It is reduced time and cost compared to litigation, reduce reliance on court and formal grievances, minimize disruption to institution operation, preserve professional and working relationship, decide promote culture of dialogue and cooperation, enhance trust and accountability, support compliance with legal and regulatory framework. If we can say implementation of ADR in institution establish a mediation window is essential for efficient recovery and client satisfaction. So that was a emerging concept is there that people supposed to, the institution supposed to develop their mediation window to resolve their client disputes on day-to-day matters amicably rather than provoking that issue and lead to the litigation side. The key element for effective mediation window is clearly eligibility criteria for dispute to be defined. Timeline initiating and completing mediation time framework is there. Panel of trained and neutral mediator required. Confidentiality and voluntary participation is mandatory. Management support and policy backing also required for implementation of the mediation window. What is the process for mediation window? Dispute, identification and registration to be made immediately. Parties informed of mediation option, consent obtained and mediator appointed. Mediation session conducted in routine manner. Settlement agreement reached on escalation is resolved amicably. Role of mediation in efficient recovery, it is encourage easy resolution of dispute, enable flexible and mutually acceptable outcome, reduce non-performing asset and backlog, support compliance and risk management, and improve operational efficiency. In the recovery process, mediation window is required. In fact, it's lead to the satisfaction between the parties and the issues were resolved. Institution challenges and mitigation also faced while establishing the mediation window. Resistance to change is always there. Awareness and training overcome that resistance. Lack of a skilled mediator for which the capacity building is required. Usually the mediation matters referred with low participation for which the policy framework
required. Confidentiality concern is there, where strong procedures safeguard the mitigation framework. Best practice for implementation, it is embedded mediation window in institution policies, conduct regular training for staff for certified mediator, ADR centers, monitor outcome and client feedback, align mediation with legal and regulatory framework, promote mediation as well as value-driven services. So, end of the day, we can say the conclusion we say by leveraging mediation within institution framework, an institution can reduce court backlogs, enhance access to justice, deliver fair, timely dispute resolution. Mediation windows strengthen institution ADR frameworks, support efficient recovery and sustainable dispute resolution, enhance client satisfaction and institution credibility, position institutions as responsive and client focused. So this is the presentation, and we here need to focus on the mediation exercise to be implemented in the organization, which is a fair option for the client to resolve their matters amicably instead of going into litigation, which is again, as I mentioned, is a very costly and time-consuming process. Thank you so much. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी फॉर्मर जज सेन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सेन हाई कोर्ट और मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड फहीम अहमद सदीकी साहब जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो असल में ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस इन मीडिएशन प्रोसेस। मीडिएशन, जब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात होती है तो उसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। जब फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में आर्बिट्रेशन के लॉज कंसीव किए गए थे तो उस वक्त जो लीगल फिलोसोफर्स थे वो बड़े खुश थे कि लिटिगेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा, लॉयर्स की बड़ी बड़ी फीसें वो भी किसी हद तक कट डाउन हो जाएंगी, मैटर रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जब आर्बिट्रेशन को प्रैक्टिस किया गया तो पता यह चला कि मामला कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ, बल्कि मेरी अपनी राय ये है कि आर्बिट्रेशन के जरिए से जितना लॉयर ने कमाया है वो उसकी हालत नहीं है। फिर मीडिएशन का प्रोसेस जो कि माशरे में हमेशा से रहा है उसको फॉर्मलाइज किया गया। सब स्लाइड तो यहाँ पे व्हाट इज एडीआर, अभी बात हो चुकी है। एडीआर में जाती तौर से मैं आर्बिट्रेशन के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेशन के केसेस मुझे मेरे रिटायरमेंट के बाद रेफर किए, मुझे भी फायदा हुआ उससे। लेकिन मीडिएशन इज बड़ा गुड प्रोसेस। अब इसमें होता यह है मीडिएशन के अंदर के पार्टीज नेगोशिएट करती हैं पहले, फिर उसके बाद एक इंडिपेंडेंट रेफरी मीडिएटर जो भी कहें वो उनको हेल्प आउट करता है। अभी आपको बताया गया कैसे वो प्रोसेस चलता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे माशरे में इसमें रेजिस्टेंस बढ़ा है। रेजिस्टेंस लॉयर्स की तरफ से भी है, रेजिस्टेंस लिटिगेंट्स की तरफ से भी है, और रेजिस्टेंस एक सोसाइटी की जो अपनी थिंकिंग है उनका जो एक पैटर्न है उसके हवाले से भी है। तो जो आज मैं टॉपिक कवर मैंने वो यहाँ पे नहीं, इसके बाद
ये सबसे बड़ी चीज है डिसलाइक चेंज। अच्छा चल रहा है, कोर्टों में केस आते हैं, जजेस भी बड़े मुतमईन हैं, ठीक है जी, आसानी से सारे मामला हल होते हैं। और फिर उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस होता क्या है, मीडिएशन लोगों को पता ही नहीं है, इसीलिए शायद सेमिनार भी हो रहा है। देन थ्रेट, परसीव थ्रेट, फियर, वकीला का रोल कम हो जाएगा, जजेस को भी हम ज़्यादा अच्छा तरीके से डिसाइड करते हैं। मीडिएटर क्या डिसाइड करेगा? हालांकि मीडिएटर कुछ भी नहीं डिसाइड करता, डिसीजन तो मीडिएटर करते ही नहीं। और अटॉर्नीज, लिटिगेंट खुद भी नहीं, ये कोर्ट में केस सही है, माना भी जज है। फिर रिसोर्सेज का मामला है, मीडिएशन जो कि कहा यह जाता है कि कम रिसोर्सेज की जगह, लेकिन मीडिएशन सेंटर अब खुद एक काफी कॉस्टली चीज होती है, ऐसा नहीं है कि तो ये नहीं है कि जी आप एक चेयर डालें और बैठ जाए मीडिएशन करने के लिए, ये भी कोई। फिर जाहिर सी बात है, जब मीडिएटर्स, जब ट्रेंड मीडिएटर्स हैं, जितने अच्छे मीडिएटर हैं उतनी अच्छी फीसें भी चार्ज करते हैं, तो कॉस्ट तो हर जगह है, इसका भी है। फिर अनसर्टेनिटी, पता नहीं फैसला क्या होगा भी या नहीं होगा, नतीजा निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे मीडिएशन के प्रोसेस में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। लीडरशिप, अब लीडरशिप मुख्तलिफ स्टेज पे, बार की लीडरशिप, कोर्ट में लीडरशिप, कोर्ट की लीडरशिप, जज वो भी रेजिस्ट करते हैं। लीगल डिपार्टमेंट्स, अटॉर्नीज, बार एसोसिएशंस, सबको है फिक्र के जी। मुझे इस पर एक वाक़या याद आया है, कराची में एक सेंटर था जो खत्म हो गया, शायद नहीं है या नहीं है, कराची सेंटर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसे सैयद सिद्दीकी साहब ने उसको किया था। उन्होंने अपना एक कोर्ट अगेंस्ट मीडिएशन का प्रोग्राम कराची सिटी कोर्ट में शुरू किया, कुछ दिन वो चला और उसके बाद फिर वकीला ने उसको तहस नहस कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल मेंबर्स, बार एसोसिएशन के तो इंडिविजुअल मेंबर्स को भी फिक्र होती है कि जी फीसें नहीं मिलेंगी, ये गलत तासुर है मीडिएशन के मुताबिक कि जी वहाँ पर वकील का कोई किरदार ही नहीं, जबकि मेरी राय यह है कि सबसे अहम किरदार वकील का है, फीस भी चार्ज करेगा। और एक और बात ये बताऊं मैं कि मेरे नुक्ते नजर से मीडिएटर की हैसियत से वकील बहुत कामयाब मीडिएटर बन सकता है और बनता है एज कंपेयर टू जजेस। नेट एग्जाम में फैसला नहीं होता, एग्रीमेंट होता है पार्टीज का। अब जजेस को का माइंड सेट ही यह है कि उन्होंने सिर्फ जजमेंट करना है, जजेस का जहन है कि ये वो सिर्फ और सिर्फ जजमेंट करेंगे, डिसीजन देंगे वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ मीडिएशन का प्रोसेस जो है इसको लॉयर ज्यादा अच्छी तरह समझते और कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल ऑफिसर्स, उनको प्रॉब्लम होता है ये क्यों कॉस्ट बेयर की जाए एक एडिशनल, अगर मीडिएशन फेल हो गया तो फिर तो हमें लिटिगेशन में जाना ही है, तो लिटिगेशन में डायरेक्ट ना जाए, मीडिएशन के अंदर क्यों हम अपना सर खपाएं। तो ये फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं वो भी रेजिस्ट करते हैं। फिर
कल्चरल इनर्शिया भी है हमारे पास। एक हैबिट है, इंस्टीट्यूशनल हैबिट भी है और इंडिविजुअल हैबिट्स भी है और नॉर्म है। आम तौर से मैंने अपने जुडिशियल कैरियर में देखा कि वो मैटर्स जो प्योरली सिविल डिस्प्यूट होते हैं उनको भी पार्टीज चाहती हैं कि वो क्रिमिनल डिस्प्यूट हो। कहीं से मैटर कोई एफआईआर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एफआईआर लॉज होगी। नेग्लिजेंस का मैटर है, एफआईआर। वो बिजली के तार गिर गए, बंदे की भैंसें मर गई, एफआईआर। एफआईआर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन ये हमारी टेंडेंसी है। कंबर शहजाद कोर्ट में मैं जब सेशन जज था तो वहां पे एक केस आया प्री अरेस्ट का, लड़ाई झगड़े का केस था। प्री अरेस्ट बेल दे दी उनको इंटरिम। दूसरे दिन दूसरी पार्टी का आया। अब दूसरी पार्टी ने आते ही कहा कि सर, अब मुझे भी अंदाजा नहीं रहा झगड़े को, तो सर वो वाली डेट नहीं दीजिएगा जिसमें उधर का कोई अलग डेट दीजिए। पता चला कि वो वही डिस्प्यूट था, वही झगड़ा था, 2 एफआईआर थी दोनों। वो मैटर मैंने वारा एक तालुका है कंबर का, वहां पर एक सीनियर वकील थे। तो जब मैं वारा तालुके में गया था तो उन्होंने हमसे तो मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि जी मैं अब रिटायर हो गया हूँ, केसेस नहीं लेता, लेकिन बाररूम रोज आता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप रिटायर हो गए, केस नहीं लेते, बाररूम क्यों रोज आते हैं? कहने लगे बाररूम के चाय का जो मजा है वो कहीं भी नहीं है। कहिए उनके अल्फाज थे। मैंने ये केस उनके पास भेज दिया, वो केस उन्होंने सेटल कर दिया। मसला ये था कि एक जमीन थी जो कि लैंड लॉक हो गई थी और उनको रास्ता चाहिए था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रास्ता कहाँ से मिलेगा। जब पार्टीज आपस में डिस्प्यूट में होती हैं तो उन्हें जो सेटलमेंट के रास्ते वही नहीं दिखाई दे रहे होते। वो जो मीडिएटर था उसने उनको रास्ता दिखा दिया, मैटर हल हो गया। क्रिमिनल केसेस भी खत्म हो गए, सिविल लिटिगेशन भी खत्म हो गई। तो हमारे पास ये है कि प्रेफरेंस होती है क्रिमिनल लिटिगेशन की, और सिविल मामला जो है उधर जाते भी नहीं है, और अगर जाएं तो मीडिएशन की तरफ जाना तो बहुत ही मुश्किल से आता है। फिर दूसरी एक और चीज है हमारे यहाँ पर, एक और हमारी मेंटालिटी है, तो फतह, सक्सेस, कामयाबी, हार और जीत का तस्वुर। सेटलमेंट की तरफ बात नहीं होती, हार या जीत। जब हम वकालत करते थे अपने सीनियर के साथ थे, तो एक स्मॉल कॉजेस कोर्ट के अंदर एक कराची बार में एक हलचल मच गई थी कि खालिद इसाक साहब अपियर हुए। तो खालिद इसाक साहब की फीस भी काफ़ी थी और स्मॉल कॉजेस कोर्ट की जो लिमिट थी 25,000 थी। तो मामला क्या था? मुझ का मामला था, किसी पार्टी ने उनको एंगेज किया, वही हार और जीत का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सेटलमेंट नहीं। तो ये भी एक रेजिस्टेंस है मीडिएशन के रास्ते में कि केस करेंगे, तंग करेंगे, नॉकडाउन करेंगे, हराएंगे तो मजा आएगा। ये भी एक चीज है जो डेटा एंड आवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट इफेक्टिव तो है लिटिगेशन में, बैरकर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक देख लिया जाए तो कॉस्ट तो बहुत है। मीडिएशन में कॉस्ट के हवाले से तो वाकई नो डाउट मीडिएटर भी फीस चार्ज करेंगे और लॉयर भी चार्ज करेंगे, लेकिन फिर इसलिए कि मामला पहले स्टेज पर ही सेटल हो जाएगा। सेटलमेंट के बाद फिर कोई मजीद लिटिगेशन नहीं होगी। सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको हाईलाइट करना चाहिए, बहुत सी हमारे अपने सोसाइटी में भी, जैसे अभी मैंने एक बात बताई। और
फिर इंस्टीट्यूशनल गोल्स को अलाइन करना चाहिए मीडिएशन के हवाले से, जो है स्ट्रेटेजी जो इसके लिए। इसके बाद जो इन्फ्लुएंसर हैं इस हवाले से उनको आइडेंटिफाई करें, क्रॉस फंक्शनल टीम में पायलट प्रोजेक्ट प्रोग्राम शुरू किए जाए मीडिएशन को, इन बैरियर्स को, इन रुकावटों को दूर करने के लिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो हम कर रहे हैं इस हवाले से, उसके जरिए से भी हम जो है मीडिएशन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो रेजिस्टेंस है, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। पॉलिसी भी एक बड़ा मसला है हमारे पास, बहुत तेजी से चेंज हो जाती है। एक चीज जो बड़ी अहम है, जो मैं यहाँ बताना चाहता था, आप वकला हम आप तो खैर फिलहाल मेरे पास है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप भी वकील हैं। एग्रीमेंट जब भी ड्राफ्ट करें तो इसके अंदर जरूर मीडिएशन की क्लॉज डालें, आर्बिट्रेशन डालें ना डालें, मीडिएशन जरूर डालें। उसका फायदा ये होगा कि जब मैटर कोर्ट में जाएगा तो जज साहिबान कहेंगे कि पहले आप ये कार्रवाई तो करके आइए, जाइए मीडिएशन का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, फिर आइए आप कोर्ट में। तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। ये वकला की जिम्मेदारी है कि वो हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर एग्रीमेंट में जहाँ भी ड्राफ्ट करें उसमें मीडिएशन की क्लॉज लाजमन डालें। कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स हैं इसमें, ग्लोबल बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें बड़ा चैलेंजेस हैं, अप्रोच है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन सक्सेस में एप्पल और सैमसंग का डिस्प्यूट था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, मीडिएशन की वजह से रिजॉल्व हो। मीडिएशन से क्यों रिजॉल्व हो जाते हैं डिस्प्यूट? अगर कभी आपने कोई मीडिएशन का प्रोसेस देखा हो तो मीडिएटर की एक बड़ी खूबी होती है, उसे कुछ याद हो या ना याद हो, एक जुमला वो बार बार कहता है कि इट इज कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल। आप जो बात बताएंगे मेरे अलावा कहीं नहीं जाएगी जब तक कि आप नहीं कहेंगे। वो मीडिएटर, हर मीडिएटर की ये आदत होती है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी को बार बार दोहराता है। तो पार्टी को ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम जो कुछ भी शेयर करेंगे हमारी इजाजत के बगैर अदर साइड को शेयर नहीं किया जाएगा। और ये कॉन्फिडेंशियलिटी बिजनेस सर्कल में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट में सारे, उसमें जनरल का काम हो रहा था फ्रांस और इंग्लैंड में, तो डिस्प्यूट आ गया। उस दौरान में डिस्प्यूट अपनी जगह पर काम नहीं होता, इसलिए कि मीडिएशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया गया। उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए अगर लिटिगेशन में जाते तो सबसे पहले क्या होता, इसके सबसे पहले मीडिएशन में ये एडवांटेज हुआ कि काम, तो जितने भी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स हैं उनमें ये बड़ा एडवांटेज है कि आप कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम है उसको बचा लेंगे, कॉस्ट को बचा लेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने कमर्शियल डिस्प्यूट में मीडिएशन को बड़ा सपोर्ट किया है, और जाहिर सी बात है जिसने किया उसका जिक्र होना चाहिए। उन्होंने, और इंटरेस्टिंगली है कि उनका जो सक्सेस रेशियो 50 to 60% है एज पर रिपोर्ट ऑफ द लाहौर हाईकोर्ट, मीडिएशन के जरिए से डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का। ये हमारे अपने मुल्क के अंदर हमारे पास जो है मीडिएशन के जरिए से तमाम रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हुए उन्होंने इसको प्रमोट। बैंकिंग एंड फाइनेंस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको प्रमोट करने के लिए
encourage किया है। बैंक्स बहुत यूज कर रहे हैं, हमारे पास भी अभी भी कर रहे हैं बहुत से। मुझे पता चला कि साहब के पास भी बैंक के बड़े मैटर आए हुए हैं मीडिएशन के लिए, तो इसमें बहुत स्कोप है। अभी हमारे पार्टनरशिप डिस्प्यूट में इसमें सर्विस फीस का एक मैटर था जो उनका अपना फैमिली बिजनेस के अंदर डिस्प्यूट था। इस डिस्प्यूट के पहले बहुत सी बातें मुझे मालूम नहीं है क्योंकि वो बहुत सी बिजनेस में कॉम्प्लिकेशन की थी, लेकिन वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ मीडिएशन के जरिए से बगैर किसी कोर्ट में जाए हुए। फेजेस क्या है, असेसमेंट किया जाता है, इसके अंदर कुछ प्रोजेक्शन है, ऑडिट आइडेंटिफाई, प्लानिंग है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, इवैल्यूएशन है, फिर इसके बाद बहर के मीडिएशन प्रोसेस वो के बहुत से हमारे पास मीडिएशन सेंटर है, फिल वक्त इसको प्रमोट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मीडिएशन प्रोसेस खासतौर से कमर्शियल डिस्प्यूट में मीडिएशन कॉस्टली है। ये ना समझें कि फ्री है, वकला की भी फीसें देनी पड़ती हैं, लेकिन लिटिगेशन के मुकाबले में फिर भी ये सस्ता है। टाइम जो है रिजोल्यूशन में कम लगता है। इसके अलावा जो मैंने एक और बात बताई कि अगर आप मीडिएशन में आ जाएंगे, डिस्प्यूट होते हुए मीडिएशन में काम अपनी जगह पे, खासतौर से बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में काम अपनी जगह पे चलता रहेगा, मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। और लिटिगेशन में गए तो काम तो स्टॉप हो जाएगा, और जब शुरू होगा तो पता नहीं कब शुरू होगा। अच्छा, यहाँ पर सेटिस्फैक्शन, वकील भी सेटिस्फाइड होगा। वकील की सेटिस्फैक्शन इसमें फीस मिलेगी, एक केस में फौरन मिल गई, मामला हल हो गया। लिटिगेशन में क्या होता है कि जो फीस सेटल कर ली उसके बाद फिर केस चलता रहा, फिर वो वकील का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। मैं जब यहाँ हाईकोर्ट में बेंच में था, जस्टिस इरफान सादात साहब के साथ एक केस के अंदर वकील साहब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जो तारीफ ले रहे हैं, सीनियर वकील का नाम नहीं बता रहा, उनसे जब सीनियर मेंबर ने ये पूछा बेंच के भाई क्या वजह है, क्यों नहीं चला रहे, तो उन्होंने कहा था कि सर असल में 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, फीस लेके हम खत्म कर चुके हैं, अब दिल नहीं चाह रहा चलाने का। दैट इज द फैक्ट। ये मैं आपको, मेरे सामने हुई ये बात, अब फैक्ट है, ये इंसानी फितरत है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते कि बार की डेट्स अगर 1 लाख रुपए फीस ली है और उसके ऊपर 100 डेटें पड़ गई तो एक डेट पे कितना आया, लेकिन 50,000 फीस ली है, मीडिएशन का प्रोसेस हुआ, एक ही सिटिंग में मसला हल हो गया, 50,000 जेब में आ गए। तो वकील का फायदा है इन दिस एंगल, अगर आप सोचें नुकसान नहीं है, फायदा है मीडिएशन में। आप पार्टी भी सेटिस्फाइड, सेटलमेंट हो गई, बिजनेस या कमर्शियल डिस्प्यूट है, रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी साहब ने एक एग्जांपल दी अपनी फैमिली की, वो सेफ रहेगी और ज्यादा डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकेंगे। एक मीडिएटर ज्यादा मैटर हैंडल कर सकता है बनिस्बत जज के। इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस हैं, मगर उन्हें ओवरकम किया जा सकता है, और उनको ओवरकम करने के बाद हम मीडिएशन के प्रोसेस को
अपने अपने नॉर्म में, अपने सोसाइटी में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसका एडवांटेज बहुत है, बार के लिए बेपना एडवांटेज है, और लिटिगेंट्स के लिए बहुत एडवांटेज है। समझ में नहीं आती उनको, लेकिन कंसिलिएशन जो है वो उससे उनको फायदा ही होता है। लिटिगेंट की एक साइकी होती है कि तकलीफ पहुंचाना। जब मैं कराची ईस्ट में सेशन जज था, तो फैमिली केसेस में मैंने एक मीटिंग रूम का कॉन्सेप्ट दिया कि जी एक मीटिंग रूम होगा, इसमें बच्चों से मुलाकात, जिस पेरेंट की मुलाकात होगी वही जाएगा और बच्चे जाएंगे, दूसरा पेरेंट अंदर नहीं जाएगा। यकीन करें हमारे जो कस्टडी के बहुत से केसेस थे वो सेटल हो गए, इसलिए कि जब पार्टीज में स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है तो उनकी सेटिस्फेक्शन इसी में ही होती है कि बेटा बाप से मिलने आया है, माँ जो है उसको रोक के बैठी हुई है कि मिलने नहीं दे रही, वो बेचैन हो रहा है। जब ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, मैटर जो है सेटल होना शुरू हुआ। तो ये भी एक बड़ी अहम चीज है कि एक जो ईगो होती है उसको एक ट्रेन मीडिएटर बड़े आसानी से उसे जो है सेटिस्फाई कर सकता है और मामला जो है हल हो सकते हैं। ये कुछ चीजें थी जो मैं रेजिस्टेंस के हवाले से जो है और उनका ओवरकम के लिए मैंने बात की है। बाकी कोई सवाल हो तो उसको यकीनन कोशिश करूँगा मैं एड्रेस करने की, अगर हो तो। वैसे जी सवाल ये है कि सवाल की सजेशन भी है कि there are some laws like that in our company act या WTO को मौजूद है, हमारे जजेस सवाल या हमारी फोर्सेस को एनफोर्स नहीं करती और कोई इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, क्योंकि पार्टी लिटिगेट्स आते हैं तो ये प्रोविजन मौजूद है ना लॉ के अंदर, तो दैट हैज टू बी इन्फोर्स्ड। जैसे कंपनी एक्ट है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, सेक्शन 276 से लेकर 285 तक यही प्रोविजंस हैं कि मीडिएशन होनी है, पिटिशन होनी है। बट कभी मैंने नहीं देखा कि कंपनी जज ने कभी इस तरह का मैटर रेफर किया हो या कोई कोशिश की हो। दिस इज माय रिक्वेस्ट, इसको आई मीन क्वेश्चन चाहिए, दिस इज द बेस्ट वे सर। ये देखें, लेकिन ये अभी ये जो लेजिस्लेशन जितना आपने जिक्र किया ना, ये अभी इनिशियल लेजिस्लेशन हुई है हमारे पास, और इसमें जो है क्योंकि ये टोटली वॉलंटरी है, इसमें जज फोर्स नहीं कर सकता, सजेस्ट कर सकता है हद से ज़्यादा। लाहौर हाईकोर्ट का मैंने जिक्र किया, उन्होंने वहाँ पर इसके लिए कमर्शियल डिस्प्यूट में एक तो बस उनका एक्ट को बाद में बना तो 21 में जब बनाया, लाहौर हाईकोर्ट ने इसमें स्टेप लिया। हाईकोर्ट के जजमेंट जो हैं वो थोड़ा सा जब वो आ जाते हैं तो कोर्टें थोड़ी सी, तो हो सकता है जैसा बैठे हुए हमने नहीं किया शायद आगे हो जाए, लेकिन मगर फिर भी मैं बताऊंगा ये आसान काम नहीं है कि आप लेजिस्लेशन के को इंटरप्रेट करते हुए इस हद तक जाएं कि कह दें कि जी ये जो लेजिस्लेशन है ये वॉलंटरी नहीं है, मैंडेटरी है। ये आसान इंटरप्रिटेशन या आसान कंस्ट्रक्शन नहीं है एक मौजूदा एग्जिस्टिंग लॉ में। बहरकैफ ये इनिशियल है, जो लॉ मेकर हैं उन पर जब दबाव पड़ेगा तो ये कम से कम ये एक अमेंडमेंट आ सकती है कि जी कोर्ट में आने से पहले मीडिएशन का प्रोसेस जो है, मीडिएशन का डोर नॉक करके फिर आओ। तो ये जब तक नहीं होता तब तक तो पोजीशन ऐसी चलेगी जी। कोर्ट भी तो जब तक दोनों पार्टी से कंसेंट नहीं होगी नहीं भेज सकती ना 89 के तहत, तो फिर तो बात तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि जब यह एक अगर ये कहा जाए अमेंडमेंट कि फर्स्ट मीडिएशन प्रोसेस मैंडेटरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एग्रीमेंट में डालें, कॉन्ट्रैक्ट्स में डालें। जब कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि ये मीडिएशन करना, जैसे आर्बिट्रेशन का मैटर आता है कोर्ट के पास, जैसे ही आता है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद है, कोर्ट कहते हैं पहले जाके आर्बिट्रेशन को गुजर जाओ, यहाँ नहीं आ सकते। तो अगर मीडिएशन क्लॉज होगी तो शायद जजेस जो है ज्यादा पावरफुल होंगे इस मामले को कराने के लिए। थैंक यू। Sir, would you like to point out some key points for successful mediation? Successful mediation? Yes.
अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल सर थोड़ा लाइक तो आप elaborate करें तो दोबारा थैंक यू। हमारे सोसाइटी में सक्सेसफुल मीडिएशन सिर्फ उन केसेस में हो सकती है जहां पर पार्टीज ऑनेस्टली डिस्प्यूट पे हों। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऑनेस्ट लिटिगेशन कम है। हमारे पास जब लिटिगेशन होती है तो एक पार्टी को पता होता है कि वो फॉल्ट पे है, फिर जरा मीडिएशन का स्कोप कम हो जाता है। लेकिन जहां ऑनेस्टली पार्टी दोनों पार्टी जो समझ रहे हैं कि वो राइट पर हैं, उस सिनेरियो में मीडिएशन का स्कोप बढ़ जाता है। चुनांचे मेरा अपना ये मैंने कहा 3 केसेस मैंने भेजे, अभी हाल ही में भेजे हैं, तीनों सक्सेसफुल हुए। अब आजिर और मजदूर की लिटिगेशन में आजिर का मसला ये होता है कि ये बंदा हमें पसंद नहीं है, इसकी शक्ल पसंद नहीं है, फैक्ट्री में आना नहीं चाहिए, उसको वो निकालना चाहता है। मजदूर का ये होता है कि जी चलो जॉब नहीं मिल रही तो कुछ पैसे ही मिल जाएं, कंपनसेशन पे बात बन जाती है। फैमिली डिस्प्यूट में चांसेस हैं। तो जहां ऐसी सिचुएशन है, लेकिन जहां पर लिटिगेशन में एक पार्टी को मालूम है कि वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लिटिगेशन आई है, तो वहां जरा मीडिएशन मुश्किल हो जाएगा। एनीथिंग जी तो मैं मुझे बताना चाह रही हूँ, या तो वकील की सिंसियरिटी पे उनको डाउट होता है, वो यही सोचते हैं कि पार्टी से मिल गया, मेरे अगेंस्ट पार्टी से मिल गया। तो ये इतना बड़ा इशू ये दुनिया भर में है, ये दुनिया भर में है। आप अपने पास अपने हद तक मुतमईन हैं कि जी मैं सही हूँ, बाकी छोड़ ओके। मीडिएशन फेल होने की सूरत में सक्सेस के इम्कान एक राइट पार्टी के बढ़ जाते हैं। और अगर यहाँ पे अगर क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन से जो है वो मेजर हो रहा है, तो आगे जो जस्टिस सिस्टम है उसमें अगर आपको एक कोई ऐसा की पॉइंट बता रहे हैं कि मीडिएशन फेल ना हो, एज वेल एज अगर होता है ये मीडिएशन प्रोसेस है। मीडिएटर कभी भी दूसरी पार्टी की कमजोरी को पहली पार्टी की कमजोरी को दूसरी पार्टी को नहीं बताता। मैंने कहा कि पार्टी फोकस हो जाती हैं, दोनों की कमजोरियां एक दूसरे को मीडिएटर नहीं बताता, क्योंकि मीडिएशन का प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉन्फिडेंशियलिटी है। इसमें फिर जो क्वालिटेटिव जस्टिस का एक एलिमेंट है वो कहाँ पे स्टैंड करेगा इस सूरत में? मीडिएशन में जस्टिस का क्वालिटेटिव जस्टिस की बात समझ रहा हूँ मैं आपकी। जस्टिस का एक पहलू ये है कि क्वालिटी डिसाइड कर दिया कि ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। मीडिएशन में ये नहीं होता, बल्कि दरमियान का रास्ता निकाला जाता है। तो दरमियान के रास्ते से फायदा ये होता है कि सेटिस्फेक्शन दोनों की होती है। तो जब सेटिस्फेक्शन है तो क्वालिटी जस्टिस हो गया। ओके, थैंक यू। अब हमारे दरमियान मौजूद हैं फॉर्मर जज शाहिद शफीक साहब, जो कि डायरेक्टर है ऑफ लीगल ट्रेनिंग्स डैनिंग सेंटर में फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। आपकी खिदमत देर बना रही हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीगल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स इन द लीगल फील्ड्स में। आप सिंध जुडिशल एकेडमी के हेड भी रहे हैं और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन रहे हैं और स्टीम फैकल्टी मेंबर हैं सिंध जुडिशल एकेडमी के, और आप मीडिएशन प्रोग्राम्स में भी कराते रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि काइंडली आप आएँ और इस जो है टॉपिक पे रोशनी डालें। Thank you. With the permission of the chair, chief guest, एडमिशन हुआ ना जब LLB में, तो सोचा कि वकालत करनी है। ये सिलसिला कहाँ से आ गया? मेडिएशन का, वकालत ख़त्म, कुछ और करो। तो है लड़ाई कुछ अपने अंदर की कि instead of following the procedure which has been laid down in the code of civil procedure, which I learned number of years, so now I have been compelled to opt another practice, that is mediation. तो ज़रा सा हम डिफरेंट उस पर तो जा रहे हैं। ये सिस्टम
हमारे मुल्क में पहली मरतबा 2002 में आया, आउटकम जीरो। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क ऑन इट, मेड एन अटेम्प्ट कि भाई किसी तरह हो जाए, कामयाब नहीं हो पाया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क को इतना काम नहीं कर रहा, तो हमेशा किसी और मैकेनिज्म पे जाने की ज़रूरत है। जिस साहब से हमने अपनी सीपीसी बोरो की थी, दे हैव अमेंडेड दैट सीपीसी एंड दे कंपेल द पार्टीज और एडवोकेट के पहले मेडिएशन फिर उसके बाद आ जाओ। हमारे यहाँ अभी इस साल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो जो सुपीरियर कमेटी है उसने ये भी डिसीजन लिया है और एलजेसीपी ने कि कोई ऐसी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करवाया जाए जिसमें कोई भी शख्स लिटिगेशन में आने से पहले मेडिएशन का फेलियर का सर्टिफिकेट लेके आए। मोहतरम जस्टिस साहब मौजूद हैं, इसाक साहब की ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर हम हाई कोर्ट तक अपनी रिक्वेस्ट ये भिजवाएं कि आई डू हैव द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, आई हैव ड्राफ्टेड द रिलेवेंट लॉ, वो जो इसके अंदर है, सीपीसी में कहाँ पे अमेंड करें, क्या सेक्शन लगाएं, क्या तरीका कार होगा, वो मैंने बनाया है। फैमिली लॉ में क्या अमेंडमेंट करें कि प्री मैरिशन को है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए। इसी तरह रेंट केसेस पे तो इनिशियली 3 फील्ड को अगर हम इस्तेमाल करें तो जिसमें मैंडेटरी कर दिया जाए तो शायद ये बेहतर हो जाएगा। मैंने ये विजडम बोरो की है टर्की मॉडल से और इटली से। मैं दोनों जुरिस्डिक्शन में जाकर देखकर मेडिसिन सेंटर कोर्स में दोनों में जाके बैठ के आई मेट विद द मेडिएटर, आई मेट विद द एडवोकेट्स एंड द जजेस ऑफ दोस कंट्रीज कि वो कैसे हुआ। तो वो यही लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, लेजिस्लेटर गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि जो जूनियर एडवोकेट है उसको तो खाना भी खाना है, वकील को भी खाना है, अपने घर को भी रन करना है। तो कोई तो एक मैकेनिज्म आए जिसके अंदर इस एडवोकेट के फाइनेंशियल इशू को भी रिजॉल्व कर लिया जाए। अब हमारे जहनों में ये आ रहा है हैसियत एडवोकेट, इफ द मैटर आर गोइंग टू बी रिजॉल्व थ्रू मेडिएशन, सो फॉर व्हाट आई एम हियर, इफ द मैटर इज रिजॉल्व और एक शाहिद साहब और एक जस्टिस साहब बन गए मीडिएटर, तो ऑल बिजनेस विल बी शाहिद साहब और जस्टिस फहीम साहब, तो फिर हम कहाँ पे रहेंगे। तो समटाइम आई फील दैट टर्की ने क्या किया, टर्की की गवर्नमेंट ने मेडिएटर्स की ट्रेनिंग करवा के मेडिएटर को सर्टिफाइड करके, और ये जो पहले केस जाएगा मेडिएटर के पास, उन मेडिएटर के पास चला गया और सरकार ने उसकी फीस ली थी। तो सरकार ने उस तरीके से फीस दी थी, तो जज जो वकील थे वो थोड़े से फैसिलिटेट हुए, और वो इस वक्त तकरीबन 9 साल के बाद इस वक्त सूरत हाल ये कि 30,000 रजिस्टर्ड मेडिएटर आर वर्किंग इन टर्की, 30,000। तो इससे कहीं पे एक नया ऑफिस से खुलने जा रहा है, एक मेडिएटर्स का नया ऑफिस खुलने जा रहा है, लिटिगेशन वहाँ पे जाएगी। 25-30 इनिशियल रेट था, 25 to 30% के वहाँ रिजॉल्व हो जाता था, और वो बहुत नॉमिनल सा अमाउंट देती थी गवर्नमेंट। लेकिन उन्होंने एक बात और रखी कि इफ द मैटर इज गोइंग टू सक्सेसफुल, तो फिर मेडिएटर मे चार्ज फ्रॉम द पार्टीज, क्योंकि मैटर रिजॉल्व होने जा रहा है। तो वो एडवोकेट को भी एक थोड़ा सा इंसेंटिव होता था कि मिल जाएगा, कुछ और पैसे भी मिल जाएंगे, कुछ और इनकम भी हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सर ने सही कही कि इमीडिएटली 1 हफ्ते 10 दिन 12 दिन 4 घंटे के अंदर मेडिएशन हो गई। मैं जब सिंध जुडिशल अकेडमी के अंदर काम कर रहा था, तो मैंने और जस्टिस खलीज आरिफ हुसैन साहब ने बहुत सारे केसेस में मेडिएशन करवाई, क्योंकि सिंध जुडिशल अकेडमी को कोर्ट एनेक्स मेडिएशन सेंटर बना दिया गया था। तो उस वक्त मैंने उन्होंने की, और हम 3 दिन 4 दिन होते थे, 6-6 4-4 घंटे लगते थे, लेकिन सक्सेसफुल रेट हमारा अच्छा खासा था। मुझे फॉर्चुनेटली इस साल रिटायरमेंट के बाद अपॉर्चुनिटी मिली बलूचिस्तान हाई कोर्ट के साथ काम करने की। उनका एक्ट को मैंने बनाया, उनके रूल्स बना के दिए,
वहाँ से हमने एक काम और भी कर दिया है कि अब हमारे सिंध के अंदर भी अभी एक कल्चर है कि जब जज साहब ये सजेस्ट करते हैं कि तुम लोग सुलह सफाई मेडिएशन कर लो, तो लोग कहते हैं साईं आप ही हमारा फैसला कर दें, आप ही हमारे मेडिएटर बन जाएं। तो उनके एक्ट के अंदर मैंने एक प्रोविजन ये भी डाल दिया है कि इफ द पार्टीज आर गोइंग टू रिक्वेस्ट द ट्रायल कोर्ट जज टू एक्ट एज मेडिएटर, सो ही मे एक्ट एज मेडिएटर, बट द वंस मेडिएशन इज रिमेन सक्सेसफुल फिर तो डिग्री कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो केस विल बी ट्रांसफर टू सम अदर कोर्ट। तो वो एक ऐसा प्रोविजन डाल दिया कि जिसकी वजह से वहाँ पे हो रहा है। एक साल के अंदर अराउंड कोई 840 केसेस रिजॉल्व हुए हैं कोर्ट अरेस्ट मेडिएशन सेंटर जो इस्टेब्लिश हुए थे हम, और 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बलूचिस्तान में हुए और वहाँ पे तो अच्छा नतीजा निकला। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को, हाई कोर्ट को कुछ पॉलिसी लेने के ऊपर, जो अभी सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी डायरेक्शंस में उसने डिसीजन लिया है कि प्री मेडिएशन हो, तो प्री मेडिएशन होने की जरूरत है, लेकिन उस प्री मेडिएशन में सिर्फ लेजिस्लेशन पास करने की जरूरत नहीं है। ये नौजवान बच्चियां, बच्चे, इनको थोड़ा सा ट्रेन करके इनके पास लोग जाएं, बातें करें, हो जाएगा। ये बच्ची बैठी है, इसके सामने मैं और अजीब साहब अगर वकील होंगे तो इसने कहाँ से जीतना है, लेकिन मेडिएशन में इफ वी आर टुगेदर तो हम दोनों जीत जाएंगे, मेडिएटर मिल जाएंगे। वैसे तुम इनसे संकल्प से नहीं जीत सकती हो, ऐसे जीत जाओगी कि मेडिएशन बातचीत हो रही है, अपना मसला, उसने अपना मसला बताया, तो आप भी जीत सकते हो। अदरवाइज मुझे तो सारे सीपीसी के सेक्टर याद है, एक कदम आगे नहीं बढ़ने दूंगा, जब सबको भी घुमाता रहूंगा, ये एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन, तो फील डिफिकल्टी। लेकिन मेडिएशन के अंदर नौजवान बच्चों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। मैं सर से भी गुफ्तगू कर रहा था कि सर हाँ हम लोग बड़े हो गए हैं, अब हम फिजिकली तौर पर इतने एक्टिव नहीं है, हम भी बड़े प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है मेडिएटर के। इफ द केसेस आर रेफर्ड टू द सीनियर पर्सन, दे डू हैव द एक्सपीरियंस, और पर्सनैलिटी में थोड़ा सा ठहराव भी है, उससे को बर्दाश्त कर सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं। ये जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके पास ये बिजनेस आ सकता है, बशर्ते कि स्टेट से थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको फैमिली लॉ का एक्ट और इसाक भाई के थ्रू आपको हम इस फोरम के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसे आप हाई कोर्ट की रूल कमेटी के अंदर प्लेस करवाएं। और हसीब भाई की अगर एफर्ट्स होंगी, हसीब भाई मैंने उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वकील का इंटरेस्ट है, इससे उसका खुशहाली है, उसकी भी बेहतरी है, उसके लिए थोड़ा सा किया, तो अगर ये एफर्ट्स होंगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं दरख्वास्त करूंगी जनाब मुफ्ती इब्राहिम ईसा साहब से, जो कि स्कॉलर है तकफ़ुल और इस्लामिक बैंकिंग की फील्ड में और मुख्तलिफ जो है फाइनेंशियल इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के शरिया एडवाइजर के तौर पे भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और उनको एक्सपीरियंस है इस्लामिक फाइनेंस बैंकिंग तकफ़ुल में पढ़ाने का भी। मैं दरख्वास्त करूंगी काइंडली आप आइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, अल्लाहुल अज़ीम। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि मीडिएशन का इस्लाम में क्या दर्जा है और कब केस अदालत में जाना चाहिए। इस्लाम सबसे पहले ये नहीं सिखाता किसी भी डिस्प्यूटेड मैटर के अंदर कि आप जज साहब के पास पहले पहुंच जाएं, इसलिए कि जज का जो काजी का जो इस्लाम में मर्तबा है वो बहुत बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा है कि खलीफा वक्त को हुक्म दिया गया है कि वो जज के सामने हाजिर। ये हमने अपने तारीख इस्लाम में ये वाक़या, हम सब ने इस तरह के वाक़यात हमने पढ़े होंगे कि खलीफा वक्त को ये हुक्म है कि वो जज के सामने हाजिर हो। तो इससे ये पता चलता है कि इस्लाम सबसे पहले लिटिगेशन को प्रेफर नहीं करता। इस्लाम का स्टेप नंबर 1 ये है कि इस्लाम अमन का मजहब है, ईमान अमन से निकला है, इस्लाम सलामती का मजहब है। इस्लाम ये सिखाता है कि जो अपने लिए पसंद करो दूसरे के लिए पसंद करो, लिहाजा डिस्प्यूट होने नहीं चाहिए, और डिस्प्यूट जिन वजूहात से होते हैं इस्लाम उनका रास्ता होता है। यहाँ तक के इस्लाम ने इससे भी मना किया है कि आप दूसरे की गीबत ना करें, क्योंकि इससे भी डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। गीबत उसको कहते हैं कि उस शख्स में ये चीज मौजूद है। तो इस्लाम सबसे पहले तो ये सिखाता है
कि जी डिस्प्यूट होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस सब के बावजूद डिस्प्यूट हो गया तो इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम दूसरे स्टेज पे ये सिखाता है कि माफ कर दो। ये इस्लाम की तालीमात है कि आप माफ कर दो। और हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो हक पर होते हुए झगड़े को छोड़ दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना ज़ईमुन, मैं ज़ामिन हूँ उस शख्स के लिए जन्नत के अंदर घर दिलाने का, जन्नत दिलाने का, जन्नत के अंदर ले जाने का मैं जिम्मेदार हूँ और ज़ामिन हूँ। और उस शख्स, वो शख्स जो कि झूठ को छोड़ दे चाहे मजाक में, उसके लिए मैं ज़ामिन हूँ कि उसको मैं जन्नत के दरमियान में घर दिलाऊंगा। और जिसके अखलाक अच्छे हों उसके लिए मैं ज़ामिन हूँ जन्नत के सबसे आला दर्जे में घर दिलाने का। तो जिसके अखलाक अच्छे होंगे वो माफ भी करेगा। तो इस्लाम दूसरे नंबर पे क्या सिखाता है? माफ कर दो। अगर कोई केस आपके पास आता है तो अगरचे ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि वकील साहब ये कहें कि माफ कर दो, क्योंकि उनकी फीस का क्या होगा, लेकिन अगर आपको जन्नत के अंदर घर चाहिए तो आपको ये करना चाहिए। नंबर 3 पर है कि अगर माफी से भी काम ना चले, अगर माफ भी ना करे कोई एक पार्टी दूसरे को, तो फिर आता है मामला मीडिएशन का कि आप मीडिएशन करें। और ये नहीं है कि आप सीधा जज साहब के पास पहुंच जाएं, बल्कि आप मीडिएशन करें। और मीडिएशन का जो कुरान करीम का हुक्म है वो ये नहीं है कि पार्टीज मीडिएशन के लिए जाएं फअस्लिहू बैनहुमा, बल्कि हुक्म ये है कि मीडिएटर खुद दरमियान में आए और दो लोगों के दरमियान अगर डिस्प्यूट हो जाए तो मीडिएटर खुद इन्वॉल्व हो। जैसे पहले जमाने में होता था कि दादा होते थे, नाना होते थे, नानी होते थे, जब भी खानदान में कोई झगड़ा होता था तो उनके पास जाके मसला हल हो जाता था। आज के दौर में मामला उलट हो गया कि हम दूर रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ नहीं लाए एक बार। अब आप देखिए कि मीडिएशन की क्या अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा कराम इंतजार फरमा रहे, नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ नहीं लाए। काफी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा कि आप कहाँ तशरीफ ले गए थे? फरमाया कि कुबा में एक झगड़ा हो गया था, उनके दरमियान सुलह कराने के लिए मैं चला गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। नमाज उसको मौखर कर दिया सुलह कराने, मीडिएशन के लिए। और फिर फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसा अमल बताऊं कि जो कि नमाज से बेहतर है, चैरिटी से बेहतर है, सदके से बेहतर है, रोजे से बेहतर है। सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह जरूर इरशाद फरमाइए। फरमाया इस्लाहु ज़ातिल बैन, के मीडिएशन कराना। लोग मुझसे हमसे ये सवाल पूछते हैं कि जब ये नेक काम है तो इसकी फीस लेना कैसे जायज हुआ? नेक काम तो फ्री में करना चाहिए। अभी जस्टिस साहब भी फरमा रहे थे कि आपकी रोजी का, फाइनेंशियल लॉस का हम नहीं कह रहे, नेक काम करने के ऊपर भी आप सैलरी ले सकते हैं, फीस ले सकते हैं। नमाज पढ़ाना नेक काम है कि नहीं है? तो इमाम साहब को सैलरी मिलती है नहीं मिलती? इमाम साहब सैलरी लेते हैं। और काजी बनना और जज होना ये भी एक नेक काम है। अगर कोई फैसला करे तो उसकी भी फीस काजी साहब लेते हैं, जज साहब लेते हैं। तो नेक काम अगर आप कर रहे हैं तो उसकी फीस आप ले सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है कि अगर मीडिएशन ना हो सके और वो फेल हो जाए तो फिर आप जो है जज के पास जाएं, आप अदालत में जाएं। ये चौथे नंबर पे आता है। तो इसलिए जो चौथे नंबर का है उसको चौथे नंबर पे रखना चाहिए, जो पहले नंबर का है उसको पहले रखना चाहिए, जो दूसरे नंबर का है वो दूसरे नंबर पे रखना चाहिए, जो तीसरे नंबर का है वो तीसरे नंबर पे रखना चाहिए। और जैसे मैंने अर्ज किया कि हर मामले को जज के सामने ले जाना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, इस्लाम के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए कि जज का मकाम बहुत बड़ा होता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट नासिर मकसूद साहब, जो कि स्पेशली कनाडा से यहाँ तशरीफ लाए हैं और आज हमारे इस सेमिनार में शिरकत कर रहे हैं। तो उनसे दरख्वास्त करूँगी कि आएँ और आपने इस टॉपिक के ख्यालात को आज़ाद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़ा मुहतरम जनाब जस्टिस जाफर रज़ा साहब, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हसीब जमाली साहब, शाहिद शफीक साहब और सालिम अंसारी साहब, मुफ्ती साहब और दीगर अहबाब,
मैं तो अचानक बाबू में सिर्फ चाय पीने के लिए आया तो मुझे साथ लेता है सर, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है और मैं आपके साथ ऑफिस में चुका हूँ। तो आपने मुझसे आर्बिट्रेशन और मीडिएशन पे बहुत रिसर्च कराई थी, तो आपको आज इसको भी बोलना है। बहरहाल काफ़ी रहना, काफ़ी बातें कर चुके हैं। साहब ने खुद कहा कुरान के हवाले से कि सुलह से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। जब कुरान जो अल्लाह की किताब है, जो किसी चीज़ को बेहतर करार दे दे कि ये सबसे बेहतर है, असुलह है, दिस इज व्हाट कुरान से, असुलह है, कि किसी चीज़ के बारे में अल्लाह ने नहीं कहा, सुलह के बारे में कहा कि असुलह है। तो उसके बाद फिर हमें केस से वर्ष निकालना कि वकीलों की फीसों का क्या होगा, केसों का क्या होगा, इसका क्या होगा, ये सब चीज़ें सोचना जो है ये हमें फिर उस तरफ ले जाती है जिससे हमारा ईमान कमजोर हो जाता है। दूसरी बात प्रोफेसर साहब ने भी कही और शाहिद शफीक साहब ने भी कही कि भाई मुखला ये सोच रहे हैं अगर मीडिएशन हो जाता है तो हमारी जो फाइल है उनका क्या होगा। ये भी हमसे लगती इस सोच में हो रही है कि हम फाइलों के एक्यूमुलेशन को रिस्क के हुसूल से टैग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, रिस्क का हुसूल, रिस्क की भरपाई फाइलों के एक्यूमुलेशन से नहीं है। रिस्क अल्लाह का वादा है, ये हमें हर हाल में मिलना है। जब हम माँ के पेट में थे उस वक्त कौन से हमारे पास फाइलें थी, अल्लाह ने फिर भी रिस्क दिया हमें और अल्लाह अभी भी रिस्क दे रहा है और बाद में भी देगा। लेकिन हम उस पुरानी मैंडेट को और फॉलो करते हैं। असुलह है तो फिर अगर 10 करोड़ के बजाय हमें 10 लाख की फीस मिलती है तो अल्लाह इसमें 10 अरब की बरकत डाल सकते हैं, क्योंकि हम अल्लाह से डर के वो काम कर रहे हैं। हम कुरान कहता है मखरजा, अगर मुझसे डर के कोई काम करोगे मैं सबके लिए सेफ एग्जैक्ट काम करूंगा। तो ये लिटिगेशन कोई मायने नहीं रखती है, छोटी चीज है, लेकिन हमें उसको उस नीयत से करना है। दूसरी चीज फरीद साहब ने बात की और हमारे मुफ्ती साहब ने भी की रेजिस्टेंस के बारे से। रेजिस्टेंस क्या है, मैं इत्तेफाक करता हूँ जो भी रेजिस्टेंस के फैक्टर्स आप लोगों ने बताए वो बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हमारे एडवर्सरी सिस्टम में मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जब डिफेंस के मुकाबले आते हैं तो डिफेंस में हम वो चीजें नहीं लेते जो एक ऑनेस्ट तरीके से लेनी चाहिए। हमारे यहाँ डिफेंस फेडरल्स होते हैं, डिफेंस समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ डिफेंस होते हैं। मैं ज़्यादातर, मुझे बैंकिंग में इतना आइडिया नहीं है, मैं ज़्यादातर टॉप लिटिगेशन मैंने की है, मैंने फेडरल एक्सीडेंट के हवाले से काम किया है, मैंने मेडिकल प्रैक्टिस के हवाले से किया है। मैं आपको चंद मिसालें दूँ। वो केसेस जो पहली दिन में ही डिसाइड हो सकते थे वो 20-20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुए। अब रेलवे क्रॉसिंग खुली हुई है और एक गाड़ी आती है और रेलवे लोकोमोटिव उसको हिट कर देती है और 100 आदमी मर जाते हैं। क्या इस केस में क्या डिफेंस है? रेलवे क्रॉसिंग को ओपन होना ही इस बात का इन्विटेशन है कि यू इनवाइटेड, दे आर नॉट ट्रेसपासर, यू गिव देम लाइसेंस टू एंटर एंड नाउ यू आर सेइंग नो, the minibus driver ought to have seen around. No, you can't be heard of saying like this. बिजली का तार गिर जाता है, लॉ ये है हर तार में गार्ड वायर मैकेनिज्म होना चाहिए। लॉ जमीन पे गिरते ही डेड होता है। अब डेड हो जाता है, इदारों की तरफ से क्लिक क्या आ रहा है, इतना बारिश होती है तो घर वालों को तरफ से एहतियात करना चाहिए। मॉनसून के सीजन में हम वार्निंग इशू कर देते हैं। क्या मतलब? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है कि आपकी जो मूवमेंट वाली जो फंडामेंटल राइट है वो हैंडीकैप हो जाएगा जब बारिश हो रही होगी। नो, दुनिया में बारिश होती है, कनाडा में बारिश होती है, अमेरिका में बारिश होती है, कहाँ होता है कैजुअलिटीज? या सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज। क्यों? अब उसमें भी डिफेंस वो कैसे भी 20 साल चल रहा है, क्यों? ये वजह है। ऑपरेशन थिएटर के कैसे देखिए, एक आदमी ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है पेशेंट, और जब बाहर आ रहा है तो फॉरेन बॉडी उसकी जेब में बहुत रह गया अंदर। अब वो के 20 साल क्यों चलेगा? क्यों? वो कहते क्या, क्लिनिकल साइंस ने कर दिया, नर्स ने कर दिया, डॉक्टर चला गया, स्कैनिंग सही नहीं हुई थी।
and these kind of things. तो मेरा ये कहना है, अगर हमारे डिफेंस में अगर हम इस तरह की तरबियत हो जाए तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, ऑनेस्टी होगी, फेयर डीलिंग होगी, बिकॉज वी शुड नॉट फील शाय ऑफ एडमिटिंग द पेटेंट फैक्ट्स। मैं टोरंटो में मैंने प्रैक्टिस की पर्सनल इंजरीज की, वहाँ पर मैंने जितने भी केसेस फाइल किए 80% केसेस मुझे अदर साइड के खुद वकील और इंश्योरेंस कंपनी कह देती है कि लायबिलिटी इज नॉट एन इशू। जब लायबिलिटी इशू नहीं है तो क्या रह जाता है इशू, कि मुआवजा कितना मिलना चाहिए, क्वांटम, वो लॉ सेटल है, वो कोई भी एक्चुअली सेटल कर देता है और 6 महीने के अंदर मामला खत्म हो जाता है। और हमारे यहाँ हमारे हसीब जमाली साहब बैठे, इनके बारे अनवर जहीर जमाली साहब, जब वो सिंगल बेंच पे थे, डिवीजन बेंच पे थे और सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस में थे, मेरे ख्याल में डजन्स ऑफ डिसीजंस उन्होंने दिए हैं, जो लेगेसी और वो हम फॉलो कर रहे हैं इसको। उन्होंने मुताबिक बार कहा कि पब्लिक फंक्शनरीज इन सच केसेस should not fight litigation, should not drag the widows and orphans up to the apex court. For what? They should advance the attitude and trend of resolving the issues. They should advance the remedy of settlement, which is lacking in this country. मैं कुछ दिन पहले आया, मुझे कुछ रिसेंट जजमेंट पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। फेटल एक्सीडेंट के केसेस में मैंने जाफर रजा साहब के जजमेंट पढ़े, few judgments. I can't resist my temptation to give compliment to his lordship. That was marvelous. I myself felt the image of Lord Denning in those discourses, because we are marching towards judicial activism. We need to motivate a culture of like fair litigation. लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, लोगों को मामला मिलना शुरू हो जाए, तो ये वो फील्ड जिसमें मैं काम करता हूँ। मैंने ये महसूस किया कि अगर जैसे फरीद साहब ने कहा कि अब किसी की गाय जल गई, अब FIR कटवाने जा रहे हैं, FIR इज अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अब उससे ट्रैक कर देते हैं, कहते हैं जब तक FIR में सजा नहीं हो जाएगी उस वक्त आप सूट फाइल कर लेंगे, उस वक्त सूट एक साल में टाइम आउट हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। सिविल लिटिगेशन आ गया, उसके प्रीपोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, उसके स्टैंडर्ड यहाँ बियॉन्ड रिजनेबल डाउट आप कैसे एक कर देंगे, आप वीडियो कैसे आगे साबित करेंगे बियॉन्ड रिजनेबल डाउट, ऐसा नहीं है। तो इन चीजों को जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ बहुत सारे केसेस हैं जो कहा कि हमें इन केसों में अब चाहिए कि उसको सिंप्लीफाई करें, और उन्होंने कहा कि अब बर्डन ऑफ प्रूफ विडो एंड ऑर्फन्स पे नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा द मोमेंट एक्सीडेंट इज एडमिटेड, नॉट द डिफॉल्ट, द मोमेंट एक्सीडेंट इज एडमिटेड, द प्रिजम्पशन ऑफ नेग्लिजेंस शुड अराइज। It should go to the defendant to show that they were not negligent. That is a marvelous success. But मैं कहता हूँ इसकी भी जरूरत नहीं पेशेंट से। जब आप खुद एडमिट कर लेते हैं, लाइबिलिटीज है, ऐसा हुआ है, ये गलती हुई है, ठीक है, मान लेते चाहिए, इस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं हो रहा आपके खिलाफ, लेकिन आप क्वांटम पे आ गए, तो क्वांटम इतना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो कि 20 साल बाद चल रहे हैं, जो बच्चा 2 साल का था, जब फैसला हो रहा है, वो 24 साल का कोर्ट में खड़ा होता है, उसका प्राइम टाइम था, वो निकल गया, उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं? उसके एक दिन का नुकसान हम वापस नहीं कर सकते, उसके एक दिन की जो ग्रोथ है उसका रेपरेशन हम नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बेहतर ये कि कल्चर ऑफ ऑनेस्टी और फेयरनेस इन द प्लीडिंग शुड बी एडवोकेटेड, प्लेंटिफ साइड की तरफ से भी, डिफेंडेंट साइड की तरफ से भी। अगर ये चीज हो जाती है तो हम खुद जाएंगे कि आ जाओ भाई, लाइबिलिटी एडवोकेट है, अब आप क्वांटम पे, क्वांटम में आराम से कैलकुलेशन हो जाती है, कोई मसला नहीं है, 2 मिनट का काम है। तो इन चीजों को अगर हम बढ़ाते हैं और काफी जगह से अब लॉ इतना सेटल हो गया है हमारे यहाँ कि हमें किसी की जरूरत नहीं है सिवाय क्वांटिफिकेशन, वो भी इंडिविजुअल क्वांटिफिकेशन काफी हद तक पूरी लॉ हो चुकी है। तो इन चीजों के साथ साथ मेरी ख्वाहिश है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, खास तौर पर ये जो टॉर्ट के केसेस हैं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशंस हैं, मेडिकल मैल प्रैक्टिस है, फेटल एक्सीडेंट के केसेस हैं, इसमें बिकॉज इंडिया के कृष्णा राय साहब ने कहा कि these are the bleeding class of cases. These are not ordinary cases of contract, mortgage, preemption, क्या वहाँ जाकर के जो है अपनी वकालत दिखाएं, no. These are the bleeding class of cases, और उन्होंने लिखा wiping of every tear from every eye of those litigants has a judicial relevance. कितनी बड़ी बात है। और हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि भाई
किसी की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है, किसी की एक को कत्ल करना सारी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। तो इस अगर स्पिरिट के साथ हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे, मैं नहीं समझता कि हमारी अदालतें भरपूर ताउन करने के लिए तैयार है। हमारी अदालत में ऐसे ऐसे जजमेंट दिए हैं जो कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका और कहीं पर भी मुझे नजर नहीं आया। जिसका हमारे एटीट्यूड है, लिबरल एटीट्यूड और जनरस एटीट्यूड है, वो दुनिया में देखने मिल रहा है। तो इंशाल्लाह इन मसाल के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा, उम्मीद भी करूंगा जो बेहतर हो वो करें और ये सोचें कि हमारा रिश्ता मालिक अल्लाह है और जो कुछ भी हम कर रहे हैं हम अल्लाह हमें देख रहा है और उसकी रिपोर्टिंग होगी। अब मैं दरख्वास्त करूंगी सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन नसीब अमानी साहब से कि वो आए और मुख्तसरन, क्योंकि आप हमारे सदर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट की जा सकती है, प्लीज आए काइंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोजेस, दोस्तों, सीनियर्स, खुसूसी तौर पे हमारे आज के जो स्पीकर्स हैं, मुफ्ती साहब जो आए हैं जिन्होंने हमें एड्रेस किया, सालिम सलाम अंसारी साहब हैं, हमारे फॉर्मर जज ऑनरेबल शाहिद शफी साहब हैं, हमारे नासिर मकसूद साहब हैं जिनसे हमने वकालत करना सीखी है, हम देख देख के आप वकालत सीखी है सर। जस्टिस रिटायर्ड ऑनरेबल फ़हीम सिद्दीकी साहब और हमारे यंग एंड डायनामिक हाई कोर्ट के जज जाफर रजा साहब जस्टिस, और ख़ास तौर पे आज के रियल होस्ट हमारे मोहम्मद इसाद साहब, मैं आप सबको वेलकम करता हूं और अपना सलाम पेश करता हूं। मीडिएशन की आज बातें सुनी और यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। मैंने मास्टर्स किया मीडिएशन में इंग्लैंड से, लेकिन जिस लॉ फर्म में गए वो लिटिगेशन लॉ फर्म थी, तो हम अपने सारे सबक भूल गए और लिटिगेशन में लग गए। देखिए, सबने बड़े अच्छे सजेशंस दिए हैं, किसी सजेशन को हम ये नहीं कह सकते अच्छा नहीं है, लेकिन मैं जो समझता हूँ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस इन लिटिगेशन, दिस इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हम ऑल्टरनेट पे उस वक्त जाते हैं जब मेन स्ट्रीम में आप अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहे। हमारी सिविल लिटिगेशन में क्या होता है, 2-2 डेकेड सूट चल रहे हैं और हॉस्टिलिटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि मैं आपको 2 केसेस की एग्जांपल दूंगा जो कि फैमिली केसेस हैं बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के एविडेंस स्टेज पे कमिश्नर भी अपॉइंट हुए हैं, झगड़े कर रहे होते हैं कि एविडेंस ना चले। हाई कोर्ट एप्लीकेशंस अलाउ कर देती है, रिवीजन फाइल होता है, 6 डेटों पे जाके बोला जाता है सर हम आर्ग्यू कर रहे हैं, रिव्यू एप्लीकेशन है सिर्फ 6 डेटों के पास, उसमें जज के खिलाफ ट्रांसफर फाइल कर दी जाती है, क्योंकि एक पार्टी को पता है कि सिस्टम वीक है और कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। जो जब मुतबादिल रास्ता नहीं है, सिस्टम वीक है, तो एक पार्टी उसे अब्यूज करती है क्योंकि उसको पता है टाइम गेन करना है। एक भाई डेथ बेड पे मरने वाला है, हमने एप्लीकेशन लगाई, पहले इसकी एविडेंस आप करा दीजिए, डेथ बेड पर है, रिव्यू फाइल ले लिए, उस ऑर्डर की रिव्यू 6 डेटों से नहीं चल रहा, और जब हम जबरदस्ती कोर्ट को कहते हैं सर हमारे आर्ग्यूमेंट सुन लें, 6 डेटों से नहीं चल रहा, तो जज के खिलाफ ट्रांसफर मूव कर दी। ये अलमिया है हमारे पास। मैं समझता हूँ मीडिएशन को इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। मीडिएशन जरूर होनी चाहिए, लेकिन इट शुड बी मेड पार्ट ऑफ द लिटिगेशन प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या हो कि पार्टीज अपनी प्लीडिंग्स फाइल करें, उसके बाद एक एक्सपर्ट मीडिएटर के पास भेजा जाए। अब मीडिएशन की भी टाइप्स होती हैं, एक फैसिलिटेटिव होती है जो कि आमतौर पे की जाती है, एक इवैल्यूएटिव होती है और एक फॉर्मेटिव होती है। These are the 3 basic types of mediation। लेकिन एक और टाइप भी होती है जिसमें कोर्ट मैंडेट देती है मीडिएटर को। मैं समझता हूं जैसे फैमिली लॉ में है प्री ट्रायल स्टेज कि आप प्लीडिंग्स फाइल करें, उसके बाद आपकी मीडिएशन की जाए। इस प्रोसेस में वकील भी इन्वॉल्व होगा, इस प्रोसेस में पार्टीज अपनी प्लीडिंग्स भी पेश कर देंगी
और ये कोर्ट में भी देखा जाएगा कि इनको मौका दिया गया था, इनको इवेल्युएट करके इनके केस के बारे में बताया गया था व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग ये रियलाइज नहीं करते कि टाइम इज ऑल्सो अ कॉस्ट, लोग ये रियलाइज नहीं करते। अभी रिसेंटली एक केस मेरे पास आया जिसमें हमारी पार्टी ने 3 साल पहले ऑफर दी थी अदर साइड को सेटल करने की। 6 मीटिंग्स के बाद मैंने फैसिलिटेट किया था उसको, नहीं माने। सब चीजें फैसिलिटेट करने के बाद जो और फरमाइशें आ गई, अब वो केस हार गए, हाईकोर्ट सब कह रहे हैं क्या वो ऑफर अभी भी मौजूद है। तो मेरे क्लाइंट ने कहा ये तो 3 साल पहले की ऑफर थी, अब हम उस पर एग्री नहीं करेंगे। तो हमारे लोग भी क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, जैसे शाहिद शफी साहब ने कहा आपके सामने कि इस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए, आपके मीडिएटर स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, उनकी बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके पास एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि एक मिनिमम स्टैंडर्ड हो, मिनिमम तरीका वजह किया जाए। सिर्फ सीबीसी में लिख देना कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट होना चाहिए या कंपनीज एक्ट में लिख देना या कंपनीज ऑर्डिनेंस में डाल देना, ये इज नॉट सफिशिएंट। वी नीड टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म। और इसमें देखिए जब केस फाइल होगा, मैं एग्जांपल देता हूं, केस फाइल हुआ, प्लीडिंग्स फाइल हुई, वकील का रोल आ गया। मीडिएशन में लोग 100% लॉ के ऊपर नहीं जाते हैं, वो ये भी देखते हैं कि टाइम इज टू मनी, हमारा कितना नुकसान हो रहा है ये अगर डिले हुआ कोर्ट में चलने से। और एक और चीज भी इसमें होनी चाहिए, जब उनको इवैल्यूएशन बता दी जाए उनकी प्रोसीडिंग्स की और कल को जजमेंट उसी हिसाब से है, तो उनके ऊपर एक कॉस्ट भी इंपोज होनी चाहिए, मैं समझता हूं। अदरवाइज ये मैकेनिज्म फिर वर्क नहीं करेगा। तो ये मेरी हम्बल सबमिशन है। बाकी एक्सपर्ट्स को आपने सुना है, आई थिंक मीडिएशन इज नीड ऑफ द आवर, मगर इसको लिटिगेशन का हिस्सा बनाएं, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें, इसको प्लीडिंग्स की बात की स्टेज पे इंट्रोड्यूस कराएं ताकि पार्टीज अपना केस बिल्ड कर लें। अब वो रिगल आउट नहीं कर सकती अपने केस से जब एक बार प्लीडिंग्स डाल दी। ये नहीं कि मीडिएशन में कुछ और स्टांस लें और बाद में जाके वो प्लीडिंग्स में कुछ और स्टांस लें, कोर्ट में कुछ और आर्ग्यू करें। अदरवाइज मीडिएशन इज, अनलेस इट इज बिटवीन कंपनीज हु आर नॉट पर्सनल, वो तो शायद सेटल करें, लेकिन फैमिली मैटर्स में, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में एक आदमी जो जाली कागज बना के आया फॉर्म 7, वो तो चाहेगा जितना खींच सकते हैं खींचो। किसी न किसी दिन कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि वो आदमी हमें पैसे देके जाएगा, पोजीशन खाली कराने के भी पैसे देके जाएगा, हम उसे अब्यूज करेंगे। तो हमने लॉ को बनाने इस चीज को जहन में रखते हुए, लेकिन इट इज अ गुड टूल but it should be made part of the litigation process। इस पे legislation होनी चाहिए। इस स्टेज को जैसे एविडेंस की स्टेज है उसी तरीके से इस स्टेज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। These are my two cents of submission। Thank you very much and once again मैं इसाक भाई का शुक्रगुजार हूँ, अपने फॉर्मर जज का साहब का और प्रेजेंट जज साहब का और तमाम सीनियर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना टाइम दिया सब्जेक्ट पे। थैंक यू वेरी मच। चीफ गेस्ट ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर मोहम्मद जाफर रजा साहब से गुजारिश करूंगी कि वो आए और आज के हमारे सेमिनार के टॉपिक पे अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन कमोबेश 20 साल पहले मैंने एक आर्बिट्रेशन का एक बड़ा महदूद कोर्स किया, तो जहाँ पर मेरे उस्ताद ने मुझे पहली चीज़ को बताई जो मुझे आज तक याद है, वो ये है that a bad deal is better than a good case। So if you have to choose between a bad deal and a good case, always choose the bad deal, because the good case will transpire after 15 years, maybe 20 years, और उसको जो eventual result होगा, it will be no good। तो आज भी I think हमें ये सबक याद रखने की ज़रूरत है कि जब कभी आपको इंतखाब करना हो एक समझौते में या एक अच्छे केस में, तो हमेशा समझौते को तरजीह देनी चाहिए। काफ़ी बात की जस्टिस फहीम सिद्दीकी साहब ने, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, सारा लीगल फ्रेमवर्क बताया, शाहिद साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया। लीगल फ्रेमवर्क हम सबके सामने है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। 89A आप सबकी नॉलेज में है,
दीगर जो सिन अमेंडमेंट हुई हैं वो आपकी नॉलेज में है। और सबसे दिलचस्प बात जो इसमें है वो ये है कि उसके अंदर जो रेफरेंस के बाद जो टाइम की हद तय की गई है लेजिस्लेशन के अंदर, उस पर अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि वो लिटिगेशन से कई दिन, कई महीने नहीं, कई साल कम है। मैक्सिमम टाइम पीरियड आप सबको पता है 60 दिन का उसमें वक्त दिया गया है, मैक्सिमम एक्सटेंशन 30 दिन की है आफ्टर रेफरेंस। तो कमोबेश 90 दिन के अंदर द एंटायर डिस्प्यूट इफ रेफर टू मीडिएशन कैन इफेक्टिवली बी रिजॉल्व। बहुत एडवांटेजेस हैं, फहीम साहब ने बताया, शाहिद साहब ने बताया, मुफ्ती साहब ने उसकी तरफ इशारा किया। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव एक्सपीडिशियस टूल। खास तौर पे अगर इस पे रोशनी डालें फैमिली केसेस के अंदर, जहाँ पे कई मुकदमात में आपको माइनर्स को, बच्चों को भी कोर्ट में लाना पड़ता है, उस माहौल में एक्सपोज करना पड़ता है जिसमें शायद उनके लिए माहौल वो साजगार नहीं है, वहाँ पे इट कैन बी वेरी इफेक्टिव। सिविल केसेस के अंदर जहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, इनहेरिटेंस के झगड़े हैं, पार्टीशन के केसेस हैं, वहाँ पे यू विल फाइंड कि झगड़ा जो है अक्सर बेशतर ईगो का ज़्यादा है, और 20 साल बाद वही नतीजा होता है जो शायद शुरू में हो जाता अगर पार्टियां आपस में बैठ जाती विद एन एक्सपर्ट मीडिएटर। बैंकिंग कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि सालों साल चलने के बाद वही रिस्ट्रक्चरिंग होती है जो शायद बहुत पहले हो सकती थी। फहीम साहब से सवाल किया गया इन रेफरेंस टू द कंपनी एक्ट, तो मैं आपको ये बताना, आपने शायद सवाल किया। You would be happy to know that recently in the last month the Honorable Company Judge of the High Court has referred to matters for mediation. उसके 2 जजमेंट अभी हाल ही में पास हुए हैं, पिछले महीने की बात है, दिसंबर के महीने के अंदर 2 जजमेंट पास हुए जहाँ पे 2 बड़े डिस्प्यूटेड कंपनी मैटर्स को मीडिएशन के अंदर रेफर किया गया। आई एम नॉट सेइंग इट इज इनफ, बट आई एम सेइंग इट्स अ बिगिनिंग, इट्स अ स्टार्ट, एंड इंशाल्लाह दिस विल ओनली गो फॉरवर्ड। स्टेटिस्टिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कोर्ट अपॉइंटेड मीडिएशन सेंटर है हाई कोर्ट के अंदर, उसके अंदर देवर 300 केसेस, 300 केसेस रेफर हुए वहाँ पे, जिसमें से 142 केस रिटर्न हो गए दीगर वजूहात की वजह से, वकला के ना आने की वजह से। मगर उस हाई कोर्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर जो है मीडिएशन सेंटर, उसने 152 केसेस को कंक्लूड किया, 152, और उसके अंदर से यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 107 केस जो थे 152 में से वो सक्सेसफुली मीडिएट हुए। दिस शोज द इफेक्ट ऑफ मीडिएशन, दिस शोज हाउ टाइम इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव मीडिएशन कैन बी। कम से कम कमोबेश 65 से 70% केस सिर्फ और सिर्फ इस हाई कोर्ट मीडिएशन सेंटर में हल किए। तकरीबन 107 सक्सेसफुल थे, 45 केस अनसक्सेसफुल थे, मगर आप रेशो देखा जाए तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल लिटिगेशन से कहीं ज़्यादा है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में नाउ देयर इज अ ग्रोइंग कल्चर ऑफ मीडिएशन, इसको तरजीह दी जाती है। हमारे यहाँ भी अगर आप देखा जाए तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की हद तक सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट दिए हैं हाल ही के अंदर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की से ऑपरेशन की केस के अंदर 5 मेंबर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वेरी प्रोफाउंड जजमेंट, जिसके अंदर उन्होंने नॉट ओनली हैव दे प्रोमोटेड आर्बिट्रेशन, बट उन्होंने ये भी कहा है कि जो कानून है हमारा रिकग्निशन इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रेशन एक्ट 2011, उसके अंदर देयर इज अ प्रो इन्फोर्समेंट बायस। और प्रो इन्फोर्समेंट बायस क्या है कि अगर कहीं फॉरेन आर्बिट्रेशन से आपके पास एक जजमेंट आती है, फॉरेन आर्बिट्रेशन अवार्ड आता है, तो यहाँ पे कोर्ट ने, हाई कोर्ट में ही आता है वो, यहाँ पे कोर्ट ने उसकी निटी-ग्रिटी में नहीं जाना। यहाँ पे कोर्ट ने सिर्फ ये देखना है कि एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट द पब्लिक पॉलिसी, इट मस्ट बी इन्फोर्स्ड, बिकॉज इट प्रमोट्स इंटरनेशनल कॉमर्स, इट प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड, इट प्रमोट्स बिजनेस। और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, जो बाकी जो बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस है, वो हैम्पर होगा अगर हाई कोर्ट जो है वो फॉरेन आर्बिट्रेशन अवार्ड्स के अंदर जो है उसको सर्टिफाइड करेंगे और अपनी उसके अंदर राय का इजहार करेंगे। तो बहुत ही महदूद पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया जिसके अंदर उस फॉरेन आर्बिट्रेशन अवार्ड को सर्टिफाइड किया जा सकता है। और आपको ये भी जान के शायद खुशी होगी कि 2025 में वी हैड 24 foreign arbitration awards pending in the High Court, and now we have only 2.
सिर्फ 2 हाई कोर्ट अवार्ड बचे हमारे पास, बाकी all of those high court award, all of those foreign arbitration awards have been disposed of. The Honorable Chief Justice was pleased to mark those cases to different judges of the High Court, and within months, all of those foreign arbitration award cases were settled. The way forward is very simple. फहीम साहब ने डिटेल में बात की कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे आई बिलीव जो बार का रोल है बड़ा ज़रूरी है. हफीज साहब सामने मौजूद हैं. आई थिंक अवेयरनेस एट द लेवल ऑफ द बार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वकीलों को इस बात से आगाह किया जाए that this is a very effective tool for dispute resolution and it can also be a very good source of income. वकील एक फीस लेता है, वो केस 10 साल 12 साल 15 साल चलते हैं, कहीं साहब ने इशारा किया. अगर वो उससे शायद फीस कम भी ले, आप ये देखिए कि उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है. उसका टर्न अराउंड टाइम उससे कहीं गुना कम है एज अपोज्ड टू द टर्न अराउंड टाइम इन litigation. And there is another source of income for lawyers in the mediation process. There are many जो भी mediation की training वगैरह होती है. If lawyers can certify themselves as mediators, it is an additional skill set. तो ये skill set एक वकील अपने उसमें शामिल कर ले, तो this can be a very good, a very regular source of income. और ये जो conventional method है litigation वैसे हट के भी वकील जो है इसके अंदर it can be very useful. इसकी कॉस्ट ज़ाहिर एसोसिएटेड है. इसकी कॉस्ट के अंदर आई एम श्योर इफ यू टॉक टू इसहाक साहब there can be some subsidized mode, and lawyers who are interested and who cannot pay, maybe the bar can bridge that gap. कुछ सब्सिडी शायद यहाँ से भी हो जाए, तो उसके अंदर अगर आप लोग मजीद लॉयर्स को ट्रेनिंग कराएं मीडिएशन की, so they can also work as mediators. मजीद ज़रूरत है obviously like I mentioned earlier for awareness, और awareness हो सकती है सिर्फ इसी तरह के सेमिनार से. तो I am very grateful to Ishaq Sahab and also the Sindh High Court Bar, who has always taken the initiative for the betterment of the bar. And I would only encourage you and thank you for the seminar, and only request that this should be done more frequently so that more people can benefit from this, and we can also encourage a culture of mediation. Thank you.